Okay. Vector addition is vector R mod of A plus B. What is the formula? This is the formula we have seen, under root of A square plus B square plus 2AB cos Yeah, theta. yeah. Yeah. So based on that, some numericals we did and some more. ये वाला formula है. और angle का भी we have to remember at what angle resultant is. This is the resultant. Angle with the first vector is alpha, that is b sin theta upon a plus b cos theta. So these are the 2 points. इसकी कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने. So for example, what about this question? Check point 1. The magnitude of displacements A and B are 3 and 4 respectively, and C is equal to A plus B. Consider various orientation of A and B. What are the maximum possible magnitude of C? And second part is minimum possible magnitude. Maximum minimum ka, do you remember formula? You just forgotten. You have to revise the thing with the Samarth. देखो मैक्सिमम के लिए a plus b होता है, मिनिमम के लिए a minus b होता है. Do you remember? Sir, we didn't do this. We didn't do. क्वेश्चन तो किया था हमने. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था ना. Find maximum minimum value of r और r और a plus b. तो ये देखो नोट्स में जस्ट मैंने ही लिखा भी ये नहीं। नहीं लिखा है. चेक करो ठीक से. चेक इट प्रॉपर्ली. नोट्स मैंने बोला था ना, यू शुड राइट ऑल द नहीं, पॉइंट्स. no, नहीं लिखा था. कुछ भी नहीं लिखा ओके सर। देखो फिर. ठीक है लिखो फिर. क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर. तो ये तीनों ऑल थ्री आर सेम थिंग है ना. तो आर विल बी मैक्सिमम when cos theta is maximum. Maximum value of cos theta is 1. That is that theta is equal to 0. All right. Yeah, So r cos theta 1 हो जाएगा. This will be a square plus b square plus 2ab, which is nothing but a whole a plus b ka square, and it will come out of the root a plus b. It means when both the vectors are in same direction, that is theta is 0, so resultant is maximum. And minimum के लिए -1, that is 180 degree. यहाँ पे माइनस आएगा. It is nothing but a minus b का whole square or b minus a का square, and it will come out of the root. It will happen when both the vectors are in opposite direction. Minimum maximum के लिए same direction, simply added, and minimum के लिए opposite direction. yes sir. So we have seen conclusion भी लिखा था हमने a plus if a b and r are the magnitude of vector a and vector b and vector c. तो r जो है it will be less than or equal to a plus b, or it will be greater than or equal to a minus b. है ना. जैसे एग्जांपल लिया था हमने 3 and 4 न्यूटन है. तो maximum force will be 7, minimum force will be equal to 1. After this, I think we did this question. ये क्वेश्चन बाद में हम लोगों ने फिर डिस्कस किया था. How can we discuss this question without considering that points? बोलो. ठीक है. तो लिखना था वो Yes, लिख लो. लिख लिया सर। Okay. Then tell me this question now.
still there is the effect है ना? You have Huh? cold and cough. You have Yeah, that cough. I was under. Yeah. Okay. My throat was also paining so much. Okay. Tonsils तो नहीं होगा था? नहीं टॉन्सिल्स नहीं था, इसलिए तो डॉक्टर ने सर अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा था, Okay. क्योंकि रूम क्वारंटाइन कर दिया था, बोला अभी बाहर मत जाओ, ऐसे इम्यून सिस्टम वीक है, आके कुछ हुआ करा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। Take care अभी भी. You have the effect. You have to take lot of care. या आई एम नॉट गोइंग आउट। Okay. या सर मैक्सिमम इसका 7 हो जाएगा, मिनिमम -1। नहीं मॉड ही लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। यहाँ पर दिया है ना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लिखते हैं। हाँ तो 7 1। एंड 1 ठीक। या और व्हाट अबाउट दिस? Find relation of R in terms of A and B at theta 0, 180, 90 if R is A plus B. मतलब it is we are talking ये जब when we have to give the complete information. What we are discussing about the vector addition. In that case theta is 0 तो then how much it will be? 180 पे कितना होगा? 90 पे कितना होगा? Give me the quick answer. sir, can you explain me one more time, because I was coughing, I couldn't listen you properly. देखो ये दिया है find relation for R in terms of A and B at theta is equal to 0, 180, 90 if R is A plus B, in which case R is maximum and minimum. थीटा These two parts are same है ना अभी जो किए. सर cos 90 cos like 0 will be the maximum one. What will be Theta the is value? 0 पे कितना आएगा? A plus B under root, yeah, under root A अभी cos थीटा 0 है ना 1 हो जाएगा, वो तो A plus B आएगा, फिर वो cos 180 वाला वो फिर A minus B हो जाएगा, वो -1 हो जाता है, और cos 90 0 था आई गेस, हाँ 0 था, तो A square plus B square रहेगा वो। ठीक है, so these are the answers. All right. Yeah. Okay, now next one is what about this? Mod of A is 3, mod of B is 4. Find mod of A plus B if angle between the vectors are 60, 90, 120, and also find mod of A plus mod of B. Okay. How to do this? सर वही r is equals to under root a square plus b square plus 2ab में लगाएंगे। Okay.
तो फर्स्ट पार्ट में कितना था 60 डिग्री 60 cos 60 इज 1/2 √37 आ जाएगा। हाँ सेकेंड पार्ट में 90 डिग्री ये वाला टर्म 0 हो जाएगा √3² प्लस √4² 5 आ जाएगा। एंड 120 cos 120 you have to remember it is frequently required cos 120 is minus 1/2 होता है। it is minus 1/2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे लगा दिया it comes हाँ √13 and what about this part देखो ये लास्ट पार्ट जो है ना कहा गया ये also find this what is the meaning of this is it mod of a plus mod of b what is this mod of a plus mod of b। हाँ इसका आंसर क्या होगा ऊपर हमने क्या निकाला a प्लस बी का मॉड ऊपर जो सारे पार्ट किए अभी हमने जो डिस्कस किए they were the हाँ mod of a plus b but what is this is the mod a plus mod b that will be equal to 7, mod a is equals to 3 and mod b is equals to 4। direct it is है ना? It is the addition of it is the sum of magnitudes 3 plus 4 is equal to 7 है ना? How do we read this this is the magnitude of sum of the vectors है ना? Sum Yeah. of vectors and this is sum of the magnitude this is sum of the magnitudes of vector Yes sir। इसमें मैग्नीट्यूड पहले आ रहा है इसमें मैग्नीट्यूड बीच में आ रहा है ना क्लियर डिफरेंस कुड यू गेट द डिफरेंस ओके व्हाट अबाउट अवर टुमारोज क्लास 8 to 9 इज ओके Morning 8 to 9। यस or 8:30 to 9:30 these are the two options Sir। कितना how much what is the time 8:30 to 8:30 9:30। okay ठीक okay so this is done what about this question this is interesting question ये जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा एक मिनट how to solve this question देखो first I have written in symbols है ना सिंबल क्या लिखा mod of a is equal to mod of b is equal to mod of r then find the angle between a and b or we can just write in the wordings like this if two vectors of equal magnitudes are inclined at angle theta magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of vectors then find theta मतलब तीनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में both the vectors are equal vector नहीं बोलेंगे we cannot call it equal vector equal vector के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 होता है they are the vectors of equal magnitude equal vectors we cannot call them equal Okay। vectors हमेशा equal vectors will be like this always theta will be 0 always Okay, so we it will be cannot call them 180 that angle theta if sir angle theta will be inside the triangle or outside। एंगल मैंने सिखाया था दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए दोनों की टेल ज्वाइन करो देन सी द स्मॉलर एंगल बिगनिंग देखो नोट्स में देखो बिगनिंग ऑफ दिस वेक्टर्स के फर्स्ट पेज पर हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो इनको जब तो बनाया इसमें फार्मूले से करेंगे पहले भी यूज द फार्मूला एंड फाइंड आउट देन आई विल शो यू विद द डायग्राम कौन सा फार्मूला वही आर वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो उसको थीटा आ जाएगा कैसे सर सेकंड देखो आर का फार्मूला सबको एक्स मान लो ऑल थ्री आर एक्स
लेट Yeah. ऑल 3 आर एक्स, बस। तो रिजल्टेंट का जो फार्मूला है उसमें आर की जगह भी एक्स लिख दो, ए की जगह भी एक्स लिख दो, बी की जगह इक्वेशन बन जाएगी। उसको सॉल्व कर लेंगे, कॉस थीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी, उससे एंगल मिल जाएगा। ऑलराइट, Yeah. just let me switch on the charging थोड़ा सा, एक just wait, half Yes. keep solving। solve and tell me the answer quickly, just take 1 minute only in solving। Yeah. सॉल्व करो जल्दी से। सर यहाँ पे तो मेरे को तो बहुत डिफरेंट आंसर आ रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही? सर नहीं आ रहा है। नहीं तो कॉस थीटा की कुछ वैल्यू तो आ रही होगी ना, इक्वेशन से सॉल्व करना आता है ना अपने को। हाँ मैंने भी मतलब जो आपने देखा है सेम किया मैंने भी। तो अभी और तो फर्दर सॉल्व करो ना इसको। हाँ मैंने कॉमन वगैरह भी लिया। हम्म, ठीक है करता हूँ। cos थीटा की वैल्यू आई cos थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 4/2। चेक करो रॉन्ग। अच्छा तुमने इसमें ऐड कर दिया था मैंने, यहाँ पे क्या लिखा बोलो? वहां पे लिखा 2x² प्लस 2x² प्लस 2x² cos थीटा, फिर 2x² को कॉमन निकाल दिया। हाँ सही है। 2x² को कॉमन निकाले तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू x²। अब x हाँ, तो वहाँ पे उसको 2 भेजा तो 1/2 हो गया। 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। सर cos थीटा, एक सेकेंड, cos थीटा का स्क्वायर आएगा ना सर? जय यहाँ पे कॉस थीटा, जब अपन कॉस स्टार्टिंग थीटा में का
1 प्लस कॉस कहाँ पे थीटा का रहेगा ना, मतलब जब अपन स्टार्टिंग में जब अपन ने आर स्क्वायर किया तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब अपन हम्म, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया, यहाँ पे गड़बड़ किया, ओके ओके। मैंने वो 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने वहां पे गड़बड़ किया। हम्म। तो ये मैंने बताया था लर्न करने के लिए, cos 120 की वैल्यू होती है ये 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सर ये तो 120 को हम लोग बता सकते थे ना, जैसे ये हम्म, अपन ने बोला कि इक्वल मैग्नीट्यूड है इसका, तो मतलब इसकी लेंथ हम्म, सेम है तीनों की, तो मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, तो अंदर के सारे एंगल्स ना 60 डिग्री के ही होंगे, तो बाहर वाला मतलब भी, हम्म, तो इवेंचुअली बाहर वाला, 120 था। हाँ तो अपने को सॉल्व करने आना चाहिए, डायग्राम से भी समझ में आना चाहिए। देखो ट्रायंगल लॉ से अगर हम करेंगे, देखो ये वेक्टर फिर ये वेक्टर और ये आर वेक्टर आएगा, तो एंगल एक्सटेंड करके टेल एंड टेल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 120। और पैरेललोग्राम लॉ से देखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ की जगह, हाँ यहाँ पे पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम से लॉ से देखेंगे तब कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, two adjacent sides are representing the two vectors, then resultant will be passing through their common points, all are co-initial। तो यहाँ से भी देखो सेम आ रहा है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एंगल रहेगा इसमें, दिस एंगल विल बी 120। इसमें एंगल यहाँ से लेंगे बाहर से। गॉट इट? यस सर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कराया होगा ऐसा क्वेश्चन आपको। नहीं नहीं एक करवाया। और यूज एक और यूजफुल पॉइंट मैं बताता हूँ जो कि हमें आगे चैप्टर्स में काम आएगा। देखो व्हाट इज दैट यूजफुल पॉइंट, टेबल भी बनाएंगे हमने। देखो देखो क्विकली आई टेल यू। देखो इफ टू वेक्टर्स, इफ टू फोर्सेस, यहाँ पे फोर्स की जगह कुछ और भी हो सकता है, टू फोर्सेस आर इक्वल मैग्नीट्यूड एफ एक्ट ऑन ए particle, then find magnitude of their resultant if theta is 0, 60, 90, 120 and 180। ये नहीं निकालने, तो ये वेक्टर, ये हमें इसमें दिस एंड दिस तो ऑलरेडी नोन है, कई बार कर लिया हमने। 60, 90 and 120 का we need it frequently in the other chapters। ओके। तो इसका टेबल भी बना लेंगे हम लोग। जब जीरो है तब कितना आएगा बोलो, कैन यू जस्ट टेल मी, व्हेन थीटा इज जीरो व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, When हाउ theta मच? is 0, it is a plus b। हाँ तो ए प्लस बी, दोनों ए बी एफ बी, ए बी एफ है बी बी एफ है, क्या आएगा, a 2f। 2f आएगा। व्हेन थीटा 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एफ स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर, यहाँ भी एफ स्क्वायर हो जाएगा, एफ एफ दोनों इक्वल है, तो f√3, एफ स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर √3, तीनों ऐड हो जाएंगे, एफ स्क्वायर 3 रूट के अंदर, एफ बाहर आ जाएगा। तो जब 60 होता है और दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो √3 टाइम्स आ जाता है। ऑलराइट, यस सर। जब 90 है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, हाँ। अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ बाहर आएगा √3। जब 120 है, जब 120 तब क्या आएगा आंसर, जब एंगल 120 है दोनों के बीच में, 120 1/√2 होता है ना। -1/√2। 120 में निकाल के देखो कितना आ रहा रिजल्टेंट। हाँ एक सेकंड। f आएगा। हाँ तो उसके ऊपर वाले का रिवर्स है ना क्वेश्चन, अभी जो किया था उसमें तीनों इक्वल दिए तो एंगल पूछा था, अभी इसमें दो हाँ इक्वल है, एंगल 120 है, तो वो एफ भी, एफ नेट भी एफ आ जाएगा, सेम है।
और 120 पे 0, 180 पे 0 हो जाएंगे। तो हमने ये टेबल ही बना ली। देखो, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू f, दोनों सेम है, देन r net will be, f net will be 0 पर 2f, 60 पर f रूट 3, 90 पर f रूट 2, 120 पर f और 180 पर 0। तो these are the frequently required angles। उसमें भी कौन सा, ये 120 वाला ज्यादा लगता है, 90 वाला तो अपने को लर्न ही हो जाता रूट 2 टाइम्स, और 60 वाला भी थोड़ा सा रूट 3 टाइम्स। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे कम हो रहा है। देखो, व्हेन एंगल इज 0 मैक्सिमम, फिर एंगल बढ़ा तो कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, 0 हो गया। Yes, sir. So this we need in subsequent chapters. So we have to remember this. So this was all about your vector addition, but vector subtraction is also important. Where do we use the vector subtraction? Can you tell me? Vector subtraction हम कहाँ use करते हैं? एक्सेलरेशन में हमें डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी लिखनी पड़ती है ना, तो वहां पे दो वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। रिलेटिव मोशन में भी, रिलेटिव मोशन का एक टॉपिक आता है, उसमें भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। रिलेटिव मोशन में भी डिफरेंस होता है और एक्सेलरेशन में भी डिफरेंस होता है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज यूज्ड इन एक्सेलरेशन, इन रिलेटिव मोशन एंड अदर प्लेसेस आल्सो। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट ए, देखो यहाँ पे समझो, सपोज वी हैव द टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर भी ये है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ये वेक्टर एडिशन था जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, a प्लस बी। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, a माइनस बी। देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी निकालना है हमें। देखो, a माइनस बी को हम क्या करेंगे, वेक्टर a प्लस माइनस बी करेंगे। तो माइनस बी मतलब b इधर है, उसका माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा। अब नेगेटिव वेक्टर इज व्हाट, इन्वर्टिंग द वेक्टर Yeah. अबाउट इट्स टेल, इन्वर्टिंग वेक्टर अबाउट इट्स टेल, ये पलट के इधर आ जाएगा। तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज माइनस बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको थोड़ी देर के लिए समझ लो सी है ये। तो ए एंड सी का वेक्टर एडिशन, ए प्लस माइनस ए प्लस सी, बट सी इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस लिख देंगे। इट इज नथिंग बट ए वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। एंगल देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, एक ये वेक्टर है, अभी एक ये वेक्टर है, ए एंड बी के बीच में तो थीटा है, अभी हमने इसको पलट दिया है, माइनस बी इधर आ गया, ए को हमने आगे निकाला, तो ये वाला एंगल होगा दोनों के बीच में। तो ऊपर वाला थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा है। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Clearly got it. तो यहाँ पर फिर हम वेक्टर एडिशन ही कर रहे हैं। देखो, वेक्टर एडिशन में क्या आता है, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर into magnitude of second vector into cosine of angle between the two vectors। अभी दूसरा वेक्टर माइनस बी बन चुका है और पहला वेक्टर ए ही है, दोनों के बीच अगर ए एंड बी के बीच में थीटा था, तो ए एंड माइनस बी के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा। इसको थोड़ी देर के लिए समझ लो वेक्टर सी है ये, और ये वेक्टर Yeah. ए एंड सी के बीच में वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, बट एंगल बिटवीन देम इज 180 माइनस थीटा। तो विल पुट 180 माइनस थीटा एंगल, बट 180 माइनस थीटा इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा होता है वो, तो आगे माइनस आ गया। यहाँ पे देखो मैंने फिर से हाईलाइट किया है, ये जो ए एंड बी होते हैं, दे आर द मैग्नीट्यूड्स ओनली, दे विल नेवर बी नेगेटिव। अगर तुम इसको माइनस पुट कर दो बी को, तो ये प्लस फिर से हो जाएगा। तो हियर यू विल मिस द थिंग्स। अगर यहाँ Yeah. पे माइनस लिख दिया और ये इसकी वजह से माइनस है, फिर से प्लस हो जाएगा। It means there is no difference between vector addition and vector subtraction, but there is certainly difference. The difference क्या है, माइनस का है। तो listen carefully, theta is what? Theta is still angle between A and B. A and B के बीच का एंगल है। यहाँ पे देखो हमने मेंशन भी किया, थीटा इज द एंगल बिटवीन A and B। A and B का एंगल है,
but vector subtraction में we have to stick to our basics only, so because of that it comes minus. तो वेक्टर एडिशन इज प्लस, यहाँ पर प्लस आता, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में माइनस आता, उसका सिंबल हम आर डैश कर देंगे. यस सर. और ये जो फार्मूला था अपना अल्फा निकालने का, उसमें भी यहाँ पे थीटा था, तो थीटा की जगह 180 माइनस थीटा पुट कर देंगे. नीचे भी कॉस थीटा था, तो उसका भी एंगल चेंज कर देंगे. तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहता है. कॉस 180 माइनस थीटा माइनस हो जाता है, यहाँ पे भी माइनस में देखो, तो नीचे माइनस आ जाता है. पर दिस वी डोंट नीड इट जनरली, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी. वेक्टर सब्ट्रैक्शन निकालेंगे ना, तब वहां पर हमें we have to use this formula. But one very important question I want to ask you, and I want you to solve now itself based on this. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, ओके पहले ये क्वेश्चन करो, फिर मैं तुम्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि तुम्हें ओरली याद हो जाएगी. तो क्वेश्चन इज दिस: इफ mod of a plus b is Do I need equal to to write the mod of, question? I want you to write the question and solve it here itself, so that it is important question. You can just remember the result later on. I'll tell you how to remember the result also. पहले सॉल्व करके देखो पहले फुल. Find the angle between a and b. If mod of a plus b is equal to mod of a minus b, a is not equal to 0, b is not equal to 0, then what will be the angle between a and b? $90. Okay, how did you do it? So cos 90 is equals to 0. A plus b का आपने फार्मूला पढ़ा था. हाँ, दोनों का भी फॉर्मूला डाला, cos थीटा. हाँ, ये सब कैंसिल हो गए इधर से. 4ab cos theta is equal to 0, therefore cos theta is equal to 0. 0 means cos 90, theta is equal to 90. डायग्राम से देखो, this is a and this was b, so minus b will come down. So this is a plus b this side, this is a minus b this side. Both have to be hypotenuse, both have to be equal in magnitude. Magnitude में equal बोलेंगे, they are not equal vectors. इस वेक्टर के तो एंगल इधर जा रहा है, इस वेक्टर का एंगल इधर जा रहा है, तो how can be they equal? But their magnitudes can be equal. Got it? yes Now my question is this, यहाँ पे देखो डायग्राम में, I think I have previously asked you also, again I am asking, a plus b बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में कि a minus b बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में? Yeah, you have Which asked one me. is greater? So it all depends upon, anything is possible है ना? It all depends upon angle between them. Even both are equal. अभी इस क्वेश्चन में तो इक्वल थे, विकर्ण से बड़ा होता है ना. तो a plus b in this case is bigger, मैग्नीट्यूड इसका. जब एंगल थीटा जो है लेस देन 90 है, तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है. जब एंगल बढ़ के 90 हो जाता तो दोनों इक्वल हो जाते मैग्नीट्यूड में. और जब एंगल और बड़ा हो गया मोर देन 90, तो a plus b छोटा हो जाएगा, a minus b will be bigger. डायग्राम से देखो, here I made the diagram. If angle between a and b is more than 90, ये तुम्हारा a है, आगे बढ़ा दिया, तो theta is greater than 90, तो a plus b इधर आ जाएगा, which will be less in magnitude. और b को हम पलट देंगे तो इन्वर्ट कर देंगे इधर, a minus b will come this side. a minus b is greater than a plus b now. When theta is 90 greater than 90,
a minus b का mod is greater than a plus b का mod. डायग्राम से ये दिख रहा है. This can be good question है ना? Can the Yeah. a minus b, can the subtraction be greater than addition? Yes, it is possible in vector algebra. Normal algebra में possible नहीं है, but in vector algebra all is possible. Even product of two vectors can be. Product of two vectors, देखो a is not equal to 0 and b is not equal to 0, but उनका product 0 हो सकता है, पता है? Suppose a is say 3, b is 4, product can be 0. How? कैसे? Because a dot b is ab cos theta, where a is the magnitude of first vector, b is the magnitude of second vector, and theta is the angle between them. तो cos theta, अगर ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो अगर दोनों 90 पे होते तो एंगल 90 हो गया, cos 90 0 होता है, तो प्रोडक्ट, their product will be 0 even if both of them are not 0. तो तुम्हारे को ये तुम्हारे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा बताओ? नहीं पढ़ाया. Product multiplication of two vectors is not done, so we'll also not do. But if required further, वर्क फॉर एनर्जी के चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट आता है एंड रोटेशनल मोशन में क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो हो सकता है उस चैप्टर में वहां पर दे दिया हो, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में भी किया उन्होंने. दे हैव डन इन 3 पार्ट्स, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, एंड प्रोडक्ट इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ चैप्टर. तो we'll see there. I will teach you if required. I will teach you there, not now. ठीक है? Okay. Will not do anything extra नहीं करेंगे ना, because it will be the wastage of time. Yeah. Vectors में, if required, then we'll do it there. Only thing I wanted to tell you, vectors में कुछ भी possible है ना? A minus can be greater than A plus B. It all depends upon the angle between. Everything depends upon the angle between the two vectors. Yeah. Got it? तो ये सब क्वेश्चन हम लोग स्किप कर सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग. और कंपोनेंट्स ऑलरेडी भी सीन है ना, ओरिजिनल कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट जो है इट इज एंगल के अपोजिट वाला जो है, दैट इज साइन कंपोनेंट. 3 डायमेंशन बता दिया था मैंने. एक वेक्टर कैन हैव 3 perpendicular components along this